Hello everyone. In the previous class, we have discussed about some basic concepts of the wave. So in this class, we will move ahead and discuss further topics of the wave, especially the transverse motion of the string. So we will start from the one-dimensional wave equation. We know that the displacement y of a one-dimensional wave is of the form y is equal to f x minus vt when the wave is propagating to the positive x direction, or we can say from left to right, or in another form y is equal to g x plus vt when the wave is propagating to the negative direction, or we can say from right to left. Now here the question arises that how we can predict the existence of waves and what should be the velocity of propagation of these waves. Like हमारे पास displacement तो आ गया, but हम ये कैसे श्योर होंगे कि ये the wave will exist, and अगर वो wave exist करती है then what will be the velocity of that wave with which it is propagating through some medium in a direction. It may be positive x direction, it may be negative x direction. So the wave equation is given by this equation. So it is del square y over del x square is equal to 1 upon v square del square y over del t square. So if we can derive this form or this equation from the physical consideration or from initial equations or initial boundary conditions, then we can be sure that the wave will exist and the velocity of the propagation of wave is v and y is the displacement. Okay, so these equation 9 and 10 are the solution of this wave equation. Okay, where function f and g are the arbitrary. So let us discuss about the simplest particular solutions of the wave equation given by the equation 11. Okay, so y is equal to a sine kx plus minus vt plus phi, or y is equal to a cos kx plus minus vt plus phi. Here is the bracket clause. Please ये आप कर लेना. Okay, so it can also take the form y is equal to a exponential iota k x plus minus vt plus phi. Okay, so यहाँ पे y displacement है, a amplitude है, k is the wave vector, v is the velocity, x is the position of a particle, and phi is the initial phase. This is what we have discussed in the previous class. Okay, so we know that the simplest form or simplest particular solution of the wave equation is denoted by these two terms. Okay, we know that the wave is the sinusoidal wave, okay, or harmonic waves. ठीक है, तो we know that harmonic functions are the sine and cosine, राइट. सो आपकी जो वेव है, ठीक है, स्ट्रिंग पे जो भी कोई भी वेव है वो साइन वेव हो सकती है या कोसाइन वेव हो सकती है. अगर वो साइन है तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, और कोसाइन है तो ये इक्वेशन यूज करेंगे. ओके, सो अगर हम ये कहें कि लेट सपोज कोई आपसे ये पूछ ले कि व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नोटेशन, ओके, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑफ द वेव. ओके, सो वी विल यूज दिस इक्वेशन. तो ये आपकी क्या है, कॉम्प्लेक्स नोटेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वन डायमेंशनल वेव. ओके, सो बट मेक श्योर कि यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर इस इक्वेशन से आप कोई वेव को रिप्रेजेंट कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज द रियल पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन. Okay, I hope it is clear to all of you. So now we will discuss the transverse waves on a string. ठीक है, so first of all we have to consider that we have a string. So let us take a string, ठीक है, stretch string having a tension t. हमारे पास एक string है, ठीक है, जिसकी लेंथ है कोई l. ठीक है, सपोज करो एक स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ है l, और उसकी जो टेंशन है स्ट्रिंग की वो है t, capital T. Okay, so now if we apply an upward force on the string, or if we apply a jerk on the string, then the string will become like this. Okay, so we know that from the inertia of motion, है ना, you know about the inertia of motion. Okay, let me tell you, inertia of motion is that thing कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इधर मोशन में है या
आपके रेस्ट में है, तो वो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती, अपने आप वो चेंज नहीं कर सकती जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, सो एनर्जी ऑफ मोशन ये है कि भाई अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, तो वो अपने आप अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती है ना। जैसे अगर डेली लाइफ में भी अगर हम देखें तो हमें चेंज पसंद नहीं है, हम जैसे रह रहे हैं हम वैसे ही रहना चाहते हैं, है ना। हमें कोई फोर्स ना करे, बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि उसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ताकि वहां पे क्या है कि इम्पल्स जनरेट हो या फिर एक इम्पल्स हमें मिले। ठीक है, सो अब क्या करेगी वो, अपने अंदर कोई चेंज नहीं चाहती, तो हम क्या करते हैं उस चेंज का अपोज करते हैं। तो सेम स्ट्रिंग के साथ हो रहा है यहाँ पे कि स्ट्रिंग भी नहीं चाहती कि उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो। ठीक है, लेकिन हम फोर्सफुल इसको चेंज कर रहे हैं, तो वो क्या करेगी, उसको अपोज करेगी। तो वो अपोज कर रही है तो क्या करेगी, एक रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो स्ट्रिंग के अंदर जनरेट हो जाएगा, जो कि क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने में हेल्प करेगा। ठीक है, सो हियर द रिस्टोरिंग फोर्स विल एक्ट ऑन द स्ट्रिंग टू ब्रिंग इट back to its initial position or equilibrium position. Now let us consider a small element of the string having length dx and the mass delta m, and now we will calculate the net force on that element which is acting on it, on that element in the plus phi direction, okay, in the upward direction. So let us see, the scenario is like this is the impulse on the string, and we have taken the part, or we have taken the element AB. This is the A point and this is the B point. A is at the position X and B is at the position X plus dx. Okay, so at point A the tension will be in this direction, and at point B tension will be in this direction, and this tension T is making an angle theta 1 with the horizontal, and similarly at point B the tension T is making a angle theta 2 with the horizontal. So at point A let us zoom it. Okay, let us zoom this. So हमें क्या करना है कि ये जो टेंशन T है वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा 1 हम एंगल बना रही है। ठीक है, सो नाउ वी विल रिजोल्व दिस। ठीक है, हमें पता है कि अगर कोई वेक्टर है, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल के साथ अगर कोई एंगल बना रहा है तो उसको कैसे रिजोल्व करें, साइन और थीटा में। सो जो बेस है, बेस के साथ जो हमारा एंगल है तो वहां पे हमारा क्या होगा, टी कोस थीटा होगा, एंड इसके अपोजिट में जो है एरो होगी, जो भी वेक्टर होगा वो आपका क्या होगा, टी साइन थीटा। तो सिमिलरली मैंने इसको क्या किया, रिजोल्व कर दिया इन कोस थीटा एंड साइन थीटा। सो दिस विल बिकम टी कोस थीटा एंड दिस विल बिकम टी साइन थीटा। एंड वी नो इन द वेक्टर अलजेब्रा वी हैव स्टडीड that if a vector is in this direction and we have chosen a vector with the same magnitude but with the opposite phase, okay, so we will, in the opposite direction we have a vector with the same magnitude but direction opposite, so there will be a minus sign. So similarly I have write here this is direction, in this direction the force is minus t sin theta 1. Similarly at point B this will be the t cos theta 2 and this will be the t sin theta 2, and here we have chosen that theta 1 and theta 2 are the small angles. So let us discuss the force at point A as well as at point B, and then we will calculate the net force acting on the element AB. ठीक है, so net, इसका net force means the total force on the element AB acting on acting in the positive y direction. Okay, so let us consider the point A. So the force at A in the upward direction is given by this term, okay, that is minus t sin theta 1, and here theta 1 is small. Okay, so minus t sin theta 1 is approximately equal to minus t tangent theta 1. Okay, so क्वेश्चन हमारा ये आएगा कि मैम ये कैसे आ गया, यहाँ पे तो साइन थीटा था, अब यहाँ पे टेन थीटा कैसे आ गया। तो हमने क्या कंसिडर किया है कि थीटा 1 और थीटा 2 जो है वो स्मॉल एंगल्स। ठीक है, तो हमने मैथमेटिक्स में ये पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई एंगल है, ठीक है, अगर वो एंगल स्मॉल है देन साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड कोस थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, सपोज करो थीटा अगर आपका क्या है, स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल है इसका मतलब वो जीरो के अप्रोक्सीमेट होगा। लेट अस सपोज वो जीरो के अप्रोक्सीमेट है, ठीक है, तो वी नो दैट कोस जीरो इज इक्वल टू 1 बट साइन जीरो इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सिमिलरली इसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या कहा है कि
थीटा अगर स्मॉल है देन साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड कोस थीटा इज इक्वल टू 1. नाउ यू कैन सपोज दैट साइन थीटा 1/1. ओके, सो 1 इज इक्वल टू कोस थीटा, तो साइन थीटा 1 cos थीटा 1 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा. ओके, बट यहाँ पे आपको क्या लिखना है, क्या कंसिडर करना है हमें कि थीटा जो है वो हमारा स्मॉल एंगल है. ठीक है, अगर हम लार्ज लेंगे थीटा को सो ये कंसिडरेशन हम वहां पे यूज नहीं कर सकते. ओके, सो माइनस टी साइन थीटा 1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू माइनस टी टेंजेंट थीटा 1 इज इक्वल टू माइनस टी. ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ से आ गया. ये टेंजेंट थीटा ट्रिग्नोमेट्री में हमें पढ़ा है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो सिमिलरली हियर द टेंजेंट थीटा 1 इज इक्वल टू डेल वाई ओवर डेल एक्स. हम बात कर रहे हैं पॉइंट ए की. ठीक है, तो पॉइंट ए किस पोजीशन पे है, एक्स. तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि दिस इज द एट पोजीशन x. Okay, so this is our first equation. Now let us consider the point b. सो बी पॉइंट पे हमारा जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो कौन सा है, टी साइन थीटा 2. राइट, सो यहाँ पे जो है साइन थीटा 2 है. हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं ना कि भाई जो हमने फोर्स लगाया उसकी जो टेंशन है, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन टी है उसकी वजह से कितना फोर्स आ रहा है. ठीक है, अभी हम यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स को हम जो है काउंट नहीं कर रहे हैं, लाइक उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं. ठीक है, सो हमारे पास सिमिलरली यहाँ पे जब बी पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे द फोर्स एट बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सो दिस इज द plus t sin theta 2. Okay, so similarly with this consideration we can see that t sin theta 2 is approximately equal to tangent t into tangent theta 2. This is equal to t del y over del x at position x plus dx, क्योंकि हमने b पॉइंट जो लिया है वो x plus dx पे लिया है. ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, नेट फोर्स कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो हमने पॉइंट ए पे देख लिया कितना फोर्स है, पॉइंट बी पे देख लिया कितना फोर्स है. नाउ वी विल सम, ओके, वी विल ऐड दीज टर्म्स. सो ऐड करने के बाद वी विल गेट t del y over del x at position x plus dx minus t del y over del x at position x. So we will get this equation because t दोनों टर्म्स में है तो t को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया. Now we know that from Taylor series expansion. टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है इस तरह का f ऑफ x प्लस डी एक्स, देन उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं बाय दिस इक्वेशन. सो f ऑफ x प्लस डी एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f प्राइम x dx प्लस f डबल प्राइम x अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू डी एक्स अप टू प्लस सो ऑन. ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट ये जो डैश है वो आपका क्या दिखा रहा है कि हमने यहाँ पे फंक्शन f का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, यहाँ पे हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया है. ठीक है, तो सिमिलरली हम इस टर्म को भी एक्सपेंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन. सो इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम इस टर्म को हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे. सो दिस विल इक्वल टू डेल y ओवर डेल x एट पोजीशन x प्लस डेल अपॉन डेल x ऑफ डेल y और डेल एक्स एट पोजिशन x इंटू डी एक्स. हमने यहाँ पे हायर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट किया है. ओके, so we will get or simplify we will get del y over del x at position x plus dx is equal to del y over del x plus del square y over del x square into dx. This is our equation 4. Now we will use this equation इन दिस इक्वेशन. ओके, सो इक्वेशन 4 को हमने क्या करना है कि ये वैल्यू हमने निकाली है. ठीक है, वो इसके इक्वल आ गई. अब ये वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें पता है कि भाई ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में. सो ये टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी. सो वी आर लेफ्ट विद दिस टर्म ओनली. ओके, सो मैंने यहाँ पे लिखा है यहाँ पे t del square y over del x square into dx is equal to t del square y over del x square into dx. हम यहाँ पे जो ये x एट पोजीशन x लिखा था तो सिंप्लीफाई ये अंडरस्टूड है कि भाई यहाँ ये x पोजीशन पे है तो हमने ये ले लिया. ठीक है, नाउ वी विल डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है कि भाई फोर्स की, जब हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, फोर्स ले रहे हैं ना कि ए पॉइंट पे फोर्स कितना है, बी पे कितना है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हम फोर्स ही लेंगे. अब हमें पता है कि हमें 9th क्लास में ये पढ़ाया जाता है कि जो फोर्स है वो क्या होता है, मास टाइम्स द एक्सेलरेशन. ठीक है, और एक्सेलरेशन ए को हम कैसे लिख सकते हैं कि भी अगर हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है
ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। ओके, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में मिनिमम डिस्टेंस जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट को y से रिप्रेजेंट करते हैं देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी। Velocity is equal to rate of change of displacement. Okay, it means that dy over dt. Similarly, acceleration is equal to first derivative of velocity. Okay, so acceleration is equal to second derivative of displacement, that is del square y upon del t square. So mass, अब हम यहाँ पे एलिमेंट ले रहे हैं ab एलिमेंट का मास कितना है डेल्टा m। ठीक है, और एक्सेलरेशन हमारे पास ये आ गया। ठीक है, फोर्स हमने इस इक्वेशन को सोल्व कर लिया कि नेट फोर्स जो है एलिमेंट ए बी पे कितना लग रहा है। ठीक है, सो नाउ इफ वी डिफाइन rho, that is the linear density, as the mass per unit length. Okay, so mass of the element is delta m and the length, unit length is dx. Okay, so rho is equal to delta m upon dx. So from this equation we can find out the delta m. So delta m is equal to rho dx. अब इस वैल्यू को हमें इस यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो चलो पुट करते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा m है तो क्या आ जाएगा रो dx इंटू डेल स्क्वेयर वाई अपॉन डेल टी स्क्वेयर इज इक्वल टू टी डेल स्क्वेयर वाई over del x square into dx. Now we can see here that dx is present in the left side as well as in the right side, so it will cancel out. Okay, so we are left with this equation, that is rho into del square y over del t square is equal to t del square y over del x square. So after rearranging we get this equation, del square y over del x square is equal to 1 upon t upon rho into del square y over del t square. And we know that the first one dimensional wave equation is this. Now we will compare these two terms. Then on comparing these two terms, these two equations, we will get that v square is equal to t upon rho. Okay, so v is equal to square root of t over rho. ठीक है, so v is the velocity with which the wave is propagating and t is the tension of the string and rho is the mass per unit length. Okay, the linear density. So यहाँ पे हमने देखा इस डेरिवेशन में कि अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और उसको टेंशन कितनी है स्ट्रिंग की t। ठीक है, तो वो उस स्ट्रिंग पे अगर हम कोई भी वेव जनरेट करना चाहते हैं तो जो वेव प्रोपोगेट करेगी ऑन द स्ट्रिंग, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो आपकी ये होगी। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ ए स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया कि कोई भी बॉडी जो है वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती। ऑलराइट, सो वो चेंज नहीं करना चाहती अपने स्टेट को जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। ठीक है, और अगर हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करेगी, उसका अपोज करेगी, है ना, उसको रेजिस्ट करेगी। ठीक है, तो स्ट्रिंग जो है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहती, बट हमने क्या किया, उस पर फोर्स लगाया और उसकी स्टेट को चेंज कर दिया। ठीक है, कि भी हमने स्ट्रिंग पे वेव जनरेट करा दी। ठीक है, सो क्या होगा कि अब वो स्ट्रिंग जो है वो उस वेव को अपोज करेगी कि भाई मुझे कोई चेंज नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट एनी चेंज। ठीक है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं कोई चेंज नहीं चाहती। तो वो क्या करेगी, उस चेंज को अपोज करेगी। और वो कितना अपोज करती है स्ट्रिंग, उसको जो है वो हम कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस कहते हैं, है ना, कि स्ट्रिंग जो है वो अब चेंज को, कि वो चेंज कौन सा होगा कि उस पर वेव हम जो है वेव प्रोपोगेट कर रही है ऑन द स्ट्रिंग, तो उसको क्या करेगी, वो अपोज करेगी। तो इसी को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका फिजिकल मीनिंग ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस। ओके, सो मैथमेटिकली वी विल डिफाइन we will express the characteristics impedance by Z, which is equal to the ratio of transverse force and the transverse velocity. We are discussing here the transverse wave motion. Okay, so we have taken the transverse force and the transverse velocity. So if we define or if we denote the transverse force by capital F and transverse velocity by V, so in characteristics impedance, that is Z is equal to F upon V. सो वेव जो है ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से हमें दिखेगी। ठीक है, एट पोजीशन x इज इक्वल टू 0 पे जो टेंशन है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल।
अब हम यहाँ पे जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है उसको अगर हम एफ नोट ई रेज टू पावर आई ओमेगा टी से हम यहाँ पे डिनोट करते हैं, जो भी हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, तो मैथमेटिकल फॉर्म उसकी ये है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में हमने देखा था एट पॉइंट ए इज द अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, माइनस टी साइन थीटा एट पॉइंट ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एट पोजिशन x इज इक्वल टू 0 द अपवर्ड फोर्स इज एफ नोट ई रेज टू पावर आई ओमेगा टी। ठीक है, और ये टेंशन की वजह से था अपवर्ड फोर्स। ठीक है, सो दिस फोर्स एफ नोट ई रेज टू पावर आई ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस टी साइन थीटा। इन दिस केस हियर द स्ट्रिंग इज acting as a medium on which the wave is propagating, okay, as well as it will act as a forced oscillator also. Okay, so this the oscillating force f naught e raised to power I omega t is transfers to the given string. It means that कि ये जो force है ये string के perpendicular direction में, ओके, परपेंडिकुलर यानी कि स्ट्रिंग जो है वो आपकी इस तरीके से है। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, इस इक्वेशन में देखो कि यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रिंग है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया तब जाके हमारे पास ये वेव जनरेट हुई है यहाँ पे। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे क्या है, वी नो दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव वेव मीन्स द वेव इज प्रोपगेटिंग, है ना। अगर कोई वेव प्रोपगेट कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट को अगर कॉम्प्लेक्स नोटेशन में देखें तो कुछ इस तरीके से हम उसको डिनोट करते हैं। और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा, वो क्या होगा, इस इक्वेशन का रियल पार्ट होगा। ये हमने पिछले टॉपिक में भी डिस्कस किया था। सो y इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर आई ओमेगा टी माइनस kx. So here a is the amplitude and it may be a complex term also. Okay, so at one end of the string where x is equal to 0. ठीक है, so हमें क्या करना है at one end. so यहाँ पे देखो अगेन, अगर हमने कंसिडर किया कि अगर थीटा स्मॉल है, ठीक है, so t minus t sin theta is equal approximately equal to minus t tangent theta and this will become minus t del y over del x. ठीक है, so at position this when x is equal to 0 सेम कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करेगी। बस फर्क क्या आएगा कि यहाँ पे ये जो हम डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लेने के बाद हम वहाँ पे x को 0 पुट करेंगे। पहले 0 पुट नहीं करना, हमें बाद में 0 पुट करना है ना। पहले 0 पुट कर दोगे उसके बाद फिर हमारे पास जो इक्वेशन जो है वो गलत आएगी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x एंड देन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x इज 0। ओके, सो अब इसका डेरिवेटिव लोगे तो यहाँ पे a जो है एम्ब्रो बेशक से भी कॉम्प्लेक्स तो है बट कांस्टेंट क्वांटिटी होगी ना। सो a कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। ठीक है, और वी नो दैट द डेरिवेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू e रेज़ टू x। ठीक है, ये एज इट इज है। अब इसकी जो पावर है उसका हम करेंगे डेरिवेटिव, हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो ये टर्म एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगी। ठीक है, और x के रिस्पेक्ट में जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस आयोटा के वो आगे आ जाएगा। ठीक है, और माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया है, सो मैं वर्बली इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो एफ नोट ई रेज़ टू पावर आई ओमेगा टी इज इक्वल टू आयोटा के t इंटू ए रेज टू पावर आई ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब x को हमने यहाँ पे 0 पुट किया तो some constant quantity times 0 is equal to 0. So we will get f naught e raised to power I omega t is equal to iota k t a e raised to power I omega t. So from this equation we can see that e I omega t is present in the both sides, so it will cancel out again. So from this equation we can find the value of a. So a is equal to f naught over I k t. Now we will multiply this term by c and divide also. So we will get f naught c upon I kt into c, and in the previous class we have studied that k times velocity is equal to omega, c is the velocity here. okay, so c यहाँ पे हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ट्रांसवर्स वेव जो है, em वेव जो वो भी आपकी ट्रांसवर्स वेव होती है, यानी कि अगर आप वेव को
कोई भी वेव है, ठीक है, अगर उसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है यानी कि c के इक्वल है तो हम वहां पे लेंगे c, ठीक है। अगर कोई वेव है जो किसी वेलोसिटी यानी कि वो वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं कर रही, उसकी खुद की कोई वेलोसिटी है ना, जैसे 5 किलोमीटर पर सेकंड है, कोई वेव इस स्पीड से जो है इस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, तो वहां पे हम लेंगे v, ठीक है। बट डायमेंशनली हम इसको k टाइम्स c भी लिख सकते हैं, बिकॉज c क्या है, वो भी वेलोसिटी है। सो k टाइम्स c इज इक्वल टू ओमेगा, तो यहाँ पे k c को हम ओमेगा पुट करेंगे, सो वी विल गेट a इज इक्वल टू एफ नोट इंटू c अपॉन आई ओमेगा टी। सो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है, सॉरी थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अब कहा था ना इट में बी कॉम्प्लेक्स, सो आ गई ना एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, यहाँ पे आयोटा आ गया, आयोटा जो है वो किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है, विच नोट्स दैट द टर्म इज कॉम्प्लेक्स, ओके। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में a की वैल्यू पुट करेंगे, सो वी विल गेट y इज इक्वल टू एफ नोट into c upon I omega t into e raised to power I omega t minus kx. Now if we have the displacement, okay, now so we can calculate the velocity, velocity is equal to del y over del t, okay. So हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, है ना, पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया था, अब हम विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव करेंगे, तो अगेन ये क्वांटिटी एज इट इज है, एज इट इज रहेगी। अब इसका करोगे तो ई रेज टू पावर आई ओमेगा टी माइनस के एक्स एज इट इज, ठीक है, और पावर का जब करोगे तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है, इसका जीरो आ जाएगा, इस टर्म का जब आप डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू टी वी विल गेट आई इंटू ओमेगा, सो वही हमने रखा है यहाँ, लिखा है यहाँ पे, ठीक है। नाउ I omega is present in numerator as well as in denominator, so it will cancel out. So velocity v is equal to f naught c upon t into e raised to power I omega t minus kx. So this is our equation 5. ठीक है, सो इक्वेशन 4 एंड 5 कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 कैन ऑल्सो बी रिटन एज y इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन आई ओमेगा z इंटू ई रेज टू पावर आई ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड v इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन z ई रेज टू पावर आई ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। सो इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि z इज इक्वल टू एफ अपॉन वी, सो यहाँ से अगर v निकालोगे तो क्या आएगा, एफ अपॉन जेड, एंड वी नो दैट कि यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो हमें क्या बताती है कि वेव किस फॉर्म में है, साइन में है या कोसाइन में है, राइट। तो वो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या होगा वेलोसिटी का, दिस वन एफ नॉट अपॉन जेड। सो अब इसको कंपेयर करो, तो इक्वेशन 5 को और इस इक्वेशन को कंपेयर करो, देन वी विल गेट द z इज इक्वल टू t अपॉन c, वेयर t इज द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। सो फ्रॉम द ट्रांसवर्स वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग वी गेट द वेलोसिटी इज इक्वल टू t, वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू t अपॉन रो, you can see here this one, velocity square is equal to t upon rho, तो similarly v is equal to square root of t upon rho, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वेलोसिटी क्या ली है, वेव की c ली है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेंशन t is equal to rho c square, ओके। सो अब यहाँ से हमारे पास क्या है, c इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। सो टेंशन t को जब हम यहाँ पे रो c स्क्वायर पुट करेंगे तो c से c कैंसिल हो जाएगा, सो z इज इक्वल टू t अपॉन c इज इक्वल टू रो c। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, यानी कि इतना फोर्स जो है वो स्ट्रिंग लगाएगी, इतना अपोज करेगी, ठीक है, उसको अपने अंदर कोई चेंज नहीं लाना चाहते, ठीक है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन पढ़ेंगे और इम्पीडेंस मैचिंग पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई होप आप लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे होंगे, एंड कोई भी क्वेरी हो प्लीज डोंट हेजिटेट एंड ऑल्सो गिव योर फीडबैक। थैंक यू सो मच।